Hello everyone. I welcome you all to this lecture, and in this lecture I will be discussing with you very important concept of the chapter chemical equilibrium, that is Le-Chatelier principle. So let's begin with Le-Chatelier principle. The law is based on very basic nature of equilibrium. The nature of equilibrium is that it is spontaneous in nature. That it is spontaneous in nature. Equilibrium is inevitable for any reaction happening. Equilibrium has to come. Equilibrium has to come, and equilibrium is the most stable stage of the chemical reaction, we can say. Okay. So each and every reaction wants to be at the equilibrium. Either it is in the forward direction, either it is moving in the backward direction. So it is moving according to in such a manner so as it wants to attain the equilibrium. Let us uh, let us understand this with the help of an example. Suppose there is a reaction AA plus BB give rise to CC plus DD. So how we write equilibrium constant for this reaction is Kc is equal to D raised to power D, C raised to power C, which is its stoichiometric coefficient, A raised to power A, and B raised to power B. So this is how we define Kc. Okay. And in the same way, we write Qc also, which is known as reaction quotient, D power D, C raised to power C, A raised to power A, and B raised to power B. Basically, if a reaction is product give rise to reactant, product give rise to reactant. If a reaction is like this, then product give rise to reactant, then QC for this reaction we will write like concentration of reactants divided by concentration of products. Let us assume a very basic reaction because we have to understand the Le-Chatelier principle. So in this case, uh, let us first make let us first write the Le-Chatelier principle, what it is. It is the reaction quotient. So what is the difference between reaction quotient and the equilibrium constant? Because for understanding Le-Chatelier principle, we must know what reaction quotient is. That is the basic need. So reaction quotient simply means the ratio of concentration of products of product to the concentration of to the product of concentration of reactant at any stage of the chemical reaction. So basically, reaction quotient is something which is calculated at any stage of the chemical reaction. तो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनी स्टेज पे निकाला जाता है, एनी स्टेज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, that is reaction quotient, and something which is calculated at a particular stage of a chemical reaction, say at equilibrium, that is equilibrium constant. So this is the very basic difference between reaction quotient and the equilibrium constant. Now let us write what Le-Chatelier principle says. However, we have generalized the Le-Chatelier principle. Still, let's write. What Le-Chatelier principle says is uh, any change, any change made to a reaction at equilibrium, at equilibrium, any change made to a reaction at equilibrium makes reaction proceed in such a manner, makes reaction proceed in such a manner
so as to oppose the effect of change, effect of change। ठीक है। सपोज एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। नाउ any change, any disturbance you will create will make reaction proceed in such a manner so as to oppose the effect of so as to oppose the effect of the change. So reaction will again have a tendency to come at equilibrium. Suppose you have made a change which is making reaction proceed in the backward direction, so reaction will come in the forward direction. Suppose you have made a change which is making reaction proceed in the which is making reaction proceed in the forward direction, so reaction will come in the backward direction. So reaction is having a tendency to come at equilibrium again and again. Okay, so that is the way a reaction process. So let us begin with Le-Chatelier principle explains. One more point we can write, that Le-Chatelier principle explains effect of concentration, pressure, effect of concentration, pressure, volume, addition of inert gas, addition of inert gas. Le-Chatelier principle explains the effect of concentration, pressure, volume, addition of inert gas, etc. at equilibrium, etc. for a reaction at equilibrium. So let's start with effect of concentration. Now the reaction is AA plus BB give rise to CC plus DD. We can take a simple reaction too. So how you will write Kc for this reaction? Ratio concentration of products raised to power their stoichiometric coefficient divided by product of concentration of reactants raised to power their stoichiometric coefficient. Okay. So suppose if you are increasing the concentration of products, if you are increasing the concentration of products, say you are increasing C or you are increasing D, increase in any of them will make reaction. So increase in any of them will make QC greater than KC. ठीक है? This will increase the value of the equilibrium reaction quotient. Yeah. So basically the equilibrium will be disturbed when you will add C or D. When you will add C or D, अगर आप C और D उसमें ऐड करोगे तो जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रिएक्शन जो है आपकी आ गई है किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन की टेंडेंसी होगी वो कहाँ जाए? बैकवर्ड में जाए। सो रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Similarly, because of increase in concentration of A or increase in concentration of B, increasing them will make QC less than KC. If QC is less than KC, then reaction will proceed in forward direction. Reaction will proceed in forward direction so as QC becomes equal to KC. ठीक है? QC को KC के इक्वल बनाने के लिए रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। आपने A को बढ़ा दिया, आपने B को बढ़ा दिया, अब रिएक्शन उसका उल्टा करेगी। रिएक्शन जो है A को कम करेगी, B को क्या करेगी? कम करेगी। A को और B को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ए को और बी को कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, like if you are decreasing the concentration of C, either you are decreasing the concentration of D, so this will make QC less than KC, and this will make reaction proceed in forward direction. And if you are decreasing the concentration of A, either you are decreasing the concentration of D, this will make QC greater than KC, and this will make reaction proceed in the backward direction. I hope you can understand this. भाई आपने ए और बी को क्या किया, डिक्रीज किया, तो डेनोमिनेटर को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर डेनोमिनेटर डिक्रीज करोगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्यूसी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, केसी हो गया। क्यूसी और केसी में डिफा ऐसे डाउट लेके आते हैं स्टूडेंट्स, अरे सर ये क्यूसी केसी कैसे बन गया। आप तो ये बताओ, ये ए को आपने डिक्रीज किया तो आपने इसको क्यूसी कैसे लिख दी। अरे भैया उसको क्यूसी नहीं लिखा है, बात ऐसी है कि QC is defined at any stage of the chemical reaction. This is the basic difference. And KC is defined at equilibrium only. तो जब मैं लिख रहा हूँ QC is greater than KC, तो QC definitely वो चीज सेम ही है। That is the ratio. That is the ratio of product to the reactant. ठीक है वही, बस उसमें जो है द स्टेज एट विच इट इज डिफाइंड इज डिफरेंट। ठीक है, स्टेज एट विच इट इज डिफाइंड इज डिफरेंट। तो ये बात है, आई होप ये समझ में आया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें एक और चीज है, देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ द केसी पॉसिबल। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ द of this possible means there are infinite kind of equilibrium are possible. ठीक है, so when you will disturb the equilibrium, it is not necessary it will have the same concentration of C or same concentration of D, but it will have the same concentration of Kc at equilibrium. So after attaining equilibrium again, it will have a new equilibrium. So there are infinite combinations are possible. ठीक है, ये चीज है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें, तो अब हम इन सभी को गैस ले लेते हैं। ए गैस प्लस बी गैस गिव राइज टू सी गैस प्लस डी गैस। यहाँ पे जो बेस्ट है उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। सबसे पहले तो जो प्रेशर का इफेक्ट है वो एक रिएक्शन में तभी देखा जाएगा जब मिनिमम वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैशियस। व्हेन minimum one of the one of the reactant or product is gaseous। भाई मिनिमम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट जो है वो गैशियस हो, तभी अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। जब आप केसी लिखते हो किसी भी रिएक्शन के लिए या फिर केपी लिखते हो, ठीक है, तो हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि जब आप केपी लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हो। आप पार्शियल प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू में टोटल प्रेशर, इनटू में क्या करते हो, टोटल प्रेशर। तो सपोज न्यूमिनेटर में आपके पास में कुछ गैशियस टर्म्स आ रही हैं, डेनोमिनेटर में आपके पास में कुछ गैशियस टर्म्स आ रही हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी। जो भी टर्म है वो फाइनली कुछ बच जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उससे कंक्लूड करके, केपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली पी टोटल बाय एन टोटल रेज टू पावर डेल एन जी
where del Ng is the change in number of gaseous moles or reactants, and Kc is directly proportional to 1 by V raised to power del Ng. ठीक है, 1 by V raised to power del N। अब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर आपको जो है गैशियस वाला ही कंसिडर करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है गैशियस वाला ही कंसिडर करना है, कंसिडर करते टाइम। ठीक है, अगर आप प्रेशर का इफेक्ट देखोगे तो, क्योंकि लिक्विड्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लिक्विड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, लिक्विड्स में भी अगर हम वॉल्यूम डबल कर रहे हैं सॉल्वेंट को ऐड करके तो ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वहां भी तो देखो, लेकिन उसमें फिर सारे लिक्विड्स ही होने चाहिए, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे अलग से। अभी अपन सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि N2 प्लस 3H2 give rise to 2NH3. What is del Ng for this reaction? -2. Product minus reactant, so that is -2. So Kp is directly proportional to N total square upon में P total square. तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो Kp डिक्रीज होगा, Qc इज लेस देन Kc। वैसे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए मैं एक लाइन लिखवाता हूं, एक यूनिवर्सल लाइन मैं बोलूंगा जो आपको याद रखनी चाहिए कि इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन shift in the direction shift in the direction having less number of moles, having less number of moles। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा जहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब आप इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और आप वैसे भी देख लो, केपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी टोटल आ रहा है, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, केपी इज लेस क्यूसी इज लेस देन केसी, केसी जो है वो डिक्रीज होगा, तो क्यूसी इज लेस देन केसी, या फिर क्यूपी इज लेस देन केपी। तो इन दैट केस, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, तो क्यूसी को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा, फॉरवर्ड आना पड़ेगा, न्यूमिनेटर इंक्रीज करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में कौन होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। डेनोमिनेटर में कौन होते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है उस टर्म की, तो आप न्यूमिनेटर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, यानी प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट्स को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, डेनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे ना, न्यूमिनेटर को इंक्रीज करोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो है केसीज क्या है, ग्रेटर देन क्यूसी है, कि क्यूसी इज लेस देन केसी है, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन भैया, रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये बात समझ में आती है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। प्रेशर को आप डिक्रीज कर देते हो इसमें, तो आपका क्यूसी इज लेस ग्रेटर देन क्या हो जाता है, केसी, एंड रिएक्शन विल प्रोसीड इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, वाइस वर्सा हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। और हमें तो इसमें डायरेक्टली ऐसा करना है कि जिस साइड कम नंबर ऑफ मोल्स हो, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। तो अभी यहाँ पे फॉरवर्ड में कम नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिक्रीज करने से वाइस वर्सा, डिक्रीज करने से मोर नंबर ऑफ मोल्स की साइड जाएगी। इसको आप एक इस तरीके से और समझ सकते हो कि जब आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। ये आइसोथर्मल है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, आइसोथर्मल ही कर रहे हैं ये हम। मतलब टेम्परेचर यहाँ हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स
पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होते। इसको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो ये, भाई जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज। कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब सभी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, जिसमें डेल एन जी जीरो है, इसमें भी जिसमें डेल एन जी जीरो है उसमें तो नो इफेक्ट। जिसमें डेल एन जीरो है उसमें क्या लिखना है आपको, नो इफेक्ट लिखना है। उसमें तो इनर्ट गैस के एडिशन का भी नो इफेक्ट, प्रेशर का भी नो इफेक्ट, और जो है आपका ये वॉल्यूम का भी नो इफेक्ट। ठीक, जो भी हम प्रेशर के लिए लिख रहे हैं वॉल्यूम का इसके लिए उल्टा हो जाएगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम मेक्स रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग जो है लेस नंबर ऑफ मोल्स। डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन में वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने पर रिएक्शन कहा जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की साइड जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वो हमें उस तरीके से उसको क्या कर देना है, रिलेट फिर कर देना। तो ये तो हो गया इस रिएक्शन के लिए, जब डेल एन जी क्या था, लेस देन जीरो था। अब एक बार डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए और देख लेते हैं। ज्यादा इसमें अपन जाएंगे तो इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसमें बस एक जिस तरीके से भी आपको समझ में आ रहा है आप तो उस तरीके को पकड़ लो। सबसे अच्छा तरीका, इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। व्हाई शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, वो आप एक्सप्रेशन लिख के देख लो केपी और केसी का, उससे आपको समझ में आ जाता है। ये पावर राइज टू पावर डेल्टा एन ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब डेल एन जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो N2O4 गिव राइज टू 2NO2। सपोज ये रिएक्शन है, इसके लिए हम अगर केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो जब आप ये लिखोगे, ठीक है, तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, अगर इसमें प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। प्रेशर को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पार्शियल प्रेशर दोनों का क्या होगा, बढ़ेगा। पार्शियल प्रेशर दोनों का ही क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन न्यूमिनेटर जो है वो आपका ज्यादा बढ़ेगा और डेनोमिनेटर जो है वो आपका कम बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर बढ़ेगा ज्यादा है, न्यूमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है और डेनोमिनेटर कम बढ़ रहा है, नेट केपी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, या फिर क्यूपी इज ग्रेटर देन केपी। तो इससे रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन विल मूव इन, अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाना है और क्यूसी इज ग्रेटर देन क्या है, केसी है, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वही सिंपल सा समझाया है कि रिएक्शन मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां पे जो है रिएक्शन जो है मूव करेगी। एक सिंपल सी बात है, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, उस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो मूव कर जाएगी। बस इतना सा याद रखना है। वॉल्यूम में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने पे क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। सेम प्रेशर डिक्रीज होने से क्यूसी इज लेस देन केसी हो जाएगा। रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन जाएगी। दैट्स इट। आई होप समझ में आया होगा, कोशिश तो कर रहा हूं मैं पूरी। हो, ओके। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। अब हम करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में एक केस और बनता है। एक तो गैसेस का केस हो गया, एक सॉलिड सब्सटेंसेस का केस और बनता है, ठीक है। ये जैसे आयरन सॉलिड है, उसका एक इक्विलिब्रियम है आयरन लिक्विड के साथ, एफी लिक्विड के साथ, ठीक है।
तो जो आपने लो वहां लगाया था, इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो द एरिया विच इज मोर डेंसर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग मोर डेंस, ठीक है, रीजन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन shift in direction having more dense region। ठीक है, तो Fe सॉलिड है और दूसरा क्या है, Fe लिक्विड है। ठीक, तो एक तरफ आपका Fe सॉलिड है और एक तरफ है आपका Fe लिक्विड। तो जब आप इसमें प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। प्रेशर अगर इसमें हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, क्योंकि डेफिनेटली जो सॉलिड स्टेट है वो क्या होगा, मोर डेंसर होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। H2O को एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, H2O में हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, सॉलिड जो आपका लेस डेंसर होता है। तो अगर आप इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड में जाती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसके अलावा कार्बन का केस ले सकते हो, कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड का। तो जैसे डायमंड क्या आपका मोर डेंसर है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन भी बनता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी हमें मिलेंगे। अब जैसे ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जो है अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो सोलिडिफाई हो रहा है सब्सटेंस, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इधर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो आइसोमॉर्फ, ये तो वो है। ठीक है, एलोट्रॉप से आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से जो है होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, वेपर प्रेशर से रिलेटेड पूछता है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे H2O लिक्विड और H2O क्या दे देगा, गैशियस दे देगा। ठीक है, अब इसमें जो है प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप यहाँ पे तो वो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाला ही चल जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर मेक्स रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटमोस्फेयर को बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें इस तरीके के क्वेश्चंस हमें जो है मिलते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर जो है हर जगह इक्विलिब्रियम काम में आता है। वेपर प्रेशर डिफाइन करना हो, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना हो, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना हो, तो हमेशा लिक्विड के ऊपर क्या होते हैं, कुछ वेपर्स होते हैं। ठीक, और इनका जो प्रेशर होता है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा क्या, क्या हो गया ये, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि भैया इनर्ट गैस के ऐड करने पे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इनर्ट गैस अपन दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एक हम ऐड कर सकते हैं किस पे, किस पे ऐड कर सकते हैं, बिना कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो अगर इनर्ट गैस, इफ इनर्ट गैस
is added isochorically, then no effect. ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. If a inert gas is added at constant volume, then there is no effect of addition of inert gas. Inert gas के addition का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर inert gas को हमने क्या किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है. किस पे ऐड किया है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है. किस पे ऐड किया है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है. ठीक है भैया. अगर हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक. बेसिकली आप इनर्ट गैस को जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे ना, एन बाई वी क्या रहेगा? सेम रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम. और इसलिए केसी भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. केसी भी क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा. ठीक है. और इसी तरीके से आपका केपी भी सेम रहेगा. ठीक है, क्योंकि केसी इज इक्वल टू क्या होता है? केपी आर टी रेज टू पावर डेल डेन होता है. ठीक है. अच्छा, हम टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख ही रहेंगे. ठीक है. आइसोकोरिकली के साथ में ये आइसोथर्मली भी है. ठीक है. आइसोथर्मली तो है ही. अगर टेम्परेचर चेंज करना होगा तो मैं बोलूंगा कि टेम्परेचर चेंज है. ठीक है. जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही है वो. एडेड आइसोकोरिकली एंड आइसोथर्मली. आइसोथर्मली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ठीक है. इफ inert gas is added isothermally, ओनली आइसोथर्मली अपन इनर्ट गैस को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे. प्रेशर वॉल्यूम सब क्या वेरिएबल. ठीक. अब क्या होगा? अब होगा ये कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा. रिजिड बाउंड्री नहीं, इसमें क्या रिजिड कंटेनर है. इसमें क्या आपका रिजिड कंटेनर है. बाउंड्री रिजिड है. ठीक. इसमें हमारा कोई बैलून जैसा कंटेनर है. ठीक है. जिसकी बाउंड्री क्या है? रिजिड नहीं है. जो कंटेनर है वो एक्सपेंड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जो सिस्टम है हमारा उसकी बाउंड्री रिजिड नहीं है बेसिकली. वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. तो इफ इनर्ट गैस इज एडेड आइसोथर्मली, आपने क्या किया भैया? इनर्ट गैस को आइसोथर्मली जो है वो ऐड कर दिया. तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो एन बाय वी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है. क्योंकि वॉल्यूम जो है वो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा. और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज. और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स. रिएक्शन शिफ्ट इन द डायरेक्शन. इसको भी आप वैसे डायरेक्टली याद रख सकते हो. डायरेक्शन हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स. मोर नंबर ऑफ मोल्स. क्योंकि रिएक्शन क्या चाहेगी? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? इंक्रीज. आप क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर रहे हो. आप नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? डिक्रीज. अब रिएक्शन क्या चाहेगी? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो? इंक्रीज हो. अब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? इन द डायरेक्शन हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स. जिस डायरेक्शन में मोर नंबर ऑफ मोल्स है उस डायरेक्शन में जाएगी. यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे कि एक तो N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3. अगर आप इसके अंदर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करोगे, ठीक है, तो इसका अगर आप केसी लिखते हो तो आता है NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का होल क्यूब इनटू में N2. ठीक है. तो अभी जो है कंसंट्रेशन टर्म्स डेनोमिनेटर में ज्यादा है. ठीक. तो अगर कंसंट्रेशन सभी की क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो डेनोमिनेटर क्या होगा? ज्यादा डिक्रीज होगा. तो डेनोमिनेटर अगर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है इट मींस क्यू इज ग्रेटर देन केसी. सो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ moles. That is the direction of more number of moles.
and similarly N2O4 give rise to 2NO2. ठीक है भैया, N2O4 give rise to 2NO2, N2O4 give rise to 2NO2 है, तो इसके अंदर भी जो है Kc इज इक्वल टू NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 लिखोगे। ठीक है, लिख दो भाई, Kc इज इक्वल टू NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4, ये हमने लिख दिया। अब हमारा, जब अपन इसमें क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स सब कुछ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो न्यूमिनेटर क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा। न्यूमिनेटर अगर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स Q इज लेस देन Kc, रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल्स। आई होप समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो ये था कुछ ली चेटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक, इसके बाद एक टेम्परेचर और रह जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इज द ओनली थिंग विच कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, जो कि केसी को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। बाकी कोई भी केसी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। दे हेल्प इन अटेनिंग द न्यू इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, नो डाउट, new equilibrium is established, not the same equilibrium is going to be established, there are infinite combination for every kc and qc possible। ठीक, तो अभी भैया, अभी क्या होगा, अभी आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो इसमें दो केस बन सकते हैं, एक तो एंडोथर्मिक में और एक एक्सोथर्मिक में। अगर आप एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। अगर आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। और इसमें जो है आपका क्यूसी भी अकॉर्डिंगली जो है अफेक्ट होगा। ठीक है, केसी जो है अकॉर्डिंगली अफेक्ट होगा। और इसी तरीके से अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे, एंडोथर्मिक में रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। अभी हमारे पास में टाइम की लिमिट भी है थोड़ी सी। ठीक है, तो जितना इसमें लीचेटलियर प्रिंसिपल को समझाया जा सकता है कम से कम टाइम में, उतना हमने डिस्कस किया इसको। ठीक है, so thanks for watching the video till here, if you are till here with me in the video। ठीक है, so thanks for being me till the end of the video। I hope मैं समझा पाया हूँ। Suggestions and feedbacks are welcome, nobody is perfect in this world, neither I am। So that's it, so let's end the class over here only। Thank you, have a good day।